फिर उन व्यक्त हो जाते हैं, जन्म हो जाता है. एंड अनमैनिफेस्ट अगेन व्हेन एनिहिलेटेड, फिर नष्ट होने के बाद फिर से अप्रकट हो जाते हैं. सो व्हाट नीड इज देयर फॉर लैमेंटेशन, तो वही तर्क को फिर से जारी रखते हुए भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं कि अगर शरीर भी माने अपने आप को, तो कुछ समय पहले तो ये शरीर नहीं था, फिर एक समय पे ये शरीर आता है और फिर कुछ समय के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है, अप्रकट हो जाता है. तो इसमें दुख करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार बबल्स ऑफ वाटर, इफ यू सी, बबल्स आते हैं बबल्स जाते हैं, तो उसमें दुख व्यक्त नहीं होता. उसी प्रकार ये शरीर आएंगे शरीर जाते हैं, उसमें दुख व्यक्त क्या करना है. Purport by Srila Prabhupada, accepting that there are two classes of philosophers are believing in the existence of the soul and others not believing in the existence of soul. So अब देखेंगे पाश्चात्य देश के जो फिलोसोफर्स होते हैं, खास करके वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज के जो फिलोसोफर्स हैं, दिस फिलोसोफर्स मोस्टली दे आर एथिस्ट समटाइम्स, मेनी टाइम्स, और उनको एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है कि आत्म साक्षात्कार का नॉलेज नहीं है. So there is no cause for lamentation in either case, one who is believing in soul or one who don't believe in soul. Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet even if for argument's sake we accept this atheistic theory, there is still no cause for lamentation. Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. From this subtle state of non-manifestation comes manifestation, just as from ether air is generated, from air fire is generated, and from fire water is generated, and from water earth becomes manifest. तो पहले एयर ईथर है, then from ether air comes, and then from air fire comes, and from fire water comes, and then after water earth comes. ऐसे 5 elements का evolution है. You will find this in Bhagavatam Chaitanya Charitamrita book also. And like sky, this ether has sound, then air has sound and touch, and then fire has sound, touch and form, and then water has sound, touch, form, form and taste, and earth has sound, touch, form, taste and smell. Okay, तो ऐसे इवॉल्व होता है मटेरियल मैनिफेस्टेशन. फ्रॉम द अर्थ मैनी varieties of manifestation takes place. Take for example a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again manifested and remains as atoms in the unlimited stage. तो हम भौतिक पदार्थ से कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, तो बट नष्ट होने के बाद वह फिर से उसी तत्वों में फिर से मिल जाता है. The laws of conservation of energy remains, but in course of time things are manifested and unmanifested. That is the difference. Material elements तो सदैव रहेंगे, पर कुछ फॉर्म्स जैसे मटका मिट्टी से बना हुआ है, पर एक समय के लिए वो बन जाता है, पर फिर से नष्ट होने के बाद फिर से वो मिट्टी हो जाती है. उसी प्रकार material elements are always there, and from material elements there are many things are getting created, but later on it gets dissolved and again merges into this material elements. धरती के पास जाता है, अग्नि के पास जाता है, जल के पास जाता है, वैसे. So then similarly with this body also made of 5 elements. तो इसको अंत्येष्टि करने की अलग अलग क्रिया है, लोग अपनाते हैं. कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग चिता जलाते हैं. ओके, कुछ लोग गीदड़ों को खाने के लिए देते हैं. ऐसे भी कुछ लोगों का कल्चर है. तो इसमें फाइनली व्हाट दिस 5 elements of the body made of 5 elements again merges into 5 elements. ऐसे ही है. Born at the beginning and the end, then what cause is there for lamentation either in the stage of manifestation or in unmanifestation? Somehow or other, even in the unmanifested stage things are not lost. Both at the beginning and the end all elements remain unmanifested, and only in the middle are they manifested, and thus
दिस डज नॉट मेक एनी रियल मटेरियल डिफरेंस। यही चीज़ बता रहे हैं कि जिस प्रकार पहले मिट्टी थी, फिर वो मटका बन गया, फिर से मिट्टी हो गए, फिर थोड़ी देर के लिए मिडल्स टाइम में जो मध्यम अव्यक्तादीनि भूतानि, आदि मतलब शुरुआत में तो अव्यक्त था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, एंड देन इट गेट मैनिफेस्टेड फॉर सम टाइम। ये बॉडी भी वैसे ही मटके की तरह ही है, मैनिफेस्टेड फॉर सम टाइम एंड अगेन इट इज बिकम अव्यक्त निधनान्यनव, फिर निधन होने के बाद फिर से अव्यक्त हो जाता है। तत्र का परिदेवना, देयर इज नो नीड टू लैमेंट देन। ये चेंजेस तो होते रहते हैं, इसमें लैमेंट करने की क्या आवश्यकता है? पहले तो नहीं था ना, फिर वो आ गया थोड़ी देर के लिए, आने वाला वैसे भी, फिर से जाने वाला, तो इसमें क्या है, इसमें सोचना है, इसमें क्यों इतना लैमेंट करना है? एंड इफ यू एक्सेप्ट द वैदिक कंक्लूजन एज स्टेटेड इन भगवद गीता, ये तर्क को अगर नहीं अपना, ये तो एथिस्टिक विजन है, बट वी आर नॉट सपोज टू फॉलो दिस फिलॉसफी, दैट इज एथिस्टिक। नास्तिकवाद है ये कि आत्मा को नहीं मानना, पर हम वैदिक संस्कृति के मानने वाले हैं, इसलिए we should follow that yes, the soul and body is different as stated in Bhagavad Gita. These material bodies are perishable in due course of time, antamante me deha, but the soul is eternal, nitya sukta sharirina. Then we must remember always that the body is like a dress, therefore why lament the changing of a dress? The material body has no factual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. In a dream we may think of flying in the sky or sitting on a chariot as a king, but when we wake up we can see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of non-existence of the material body. वैदिक संस्कृति का आधार ही ये है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। Therefore in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the body. इसलिए कभी कभी देखते हैं भौतिक लोग भी, तथाकथित जो लोग थे, अरे क्यों इतना विलाप करते हो, देखो एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, ये तो संसार का नियम ही है, क्या करे, ऐसे कहते एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है वो ये सोचता है कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, आत्मा तो नहीं मरा ना, आत्मा भगवान का अंश है, तो हम आत्मा के लिए, इसलिए वैदिक संस्कृति में जो नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं, वो आत्म साक्षात्कार की तरफ ही लेके जाते हैं। ऐसे हम 10वां करते हैं या फिर व्यक्ति को वर्षश्राद्ध तर्पण किया जाता है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है फिर? क्योंकि द पर्सन इज देयर, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग सम ग्रैटिट्यूड। कुछ पाश्चात्य कल्चर में ऐसे है कि अभी ये सब नहीं मानते हैं, तो हियर द एथिस्टिक विजन इज देयर, दैट्स व्हाई दे डोंट लैमेंट आल्सो मेनी टाइम्स। पाश्चात्य देश में अगर कोई मर जाता है, कोई रोता है जोर जोर से, तो उनको कहा था डू नॉट डिस्टर्ब, यू आर नॉट सपोज टू क्राई सो मच लाउडली, तो ऐसे भी कंप्लेन किया जाता है उनका, इसलिए वो रूम बंद करके रोते हैं कभी कभी। आजकल तो रोते भी नहीं है, सेल्फी निकालते बस। सो हियर द वर्स 2.28 श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज हियर, देवस, humans and animals, demigods, humans and animals are not visible before their birth. However, their subtle and gross body do exist invisibly in a potential form from the existence of causal ingredients such as earth. अगर तर्क को अपनाए भी कि शरीर पहले तो अप्रकट था, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कि जीव कभी भी अप्रकट नहीं हो सकता। नत्वेवं जातु नासम, वो श्लोक में जैसे ही कहा कि ऐसे कभी समय नहीं थे कि तुम नहीं थे, तो भगवान अपने ही बात को तर्क कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कई बार कृष्ण तर्क करते, से कल मैं एक लेक्चर में बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे भगवान स्मरण दिलाए कि इन द बिगिनिंग 4th chapter कृष्ण इज सेइंग दैट स एवं मयात्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा थी कि अर्जुन तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसी ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं। पर अंतिम में क्या कह रहे हैं कृष्ण? मन मना भव मत भक्त, कि तुम मेरा भक्त बनो। अभी कृष्ण भूल गए क्या कि पहले पता नहीं कि उनको भक्त, पहले तो बोल रहे कि वो भक्त है, अर्जुन भक्त है, तो फिर से क्यों बोल रहे हैं कि तुम मेरा भक्त बनो? सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट अर्जुन को भक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले से ही भक्त है, ये हमारे लिए कि हम भक्त बने, तो ये पॉइंट है। तो दिस देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर वी हैव टू वेरी क्लियर, दैट है बहुत ऑब्जर्व, बहुत ही डेप्थ में पढ़ना चाहिए गीता को। इसलिए आचार्य की कमेंट्रीज हम ले रहे हैं यहाँ पे। आचार्य कह रहे हैं कि देखिए, देवता हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो भले ही अप्रकट दिख रहे हैं हमें, बट स्टिल दे आर एग्जिस्टेड इनविजिबली, वो हमें दिखाई नहीं देंगे, पर दे आर देयर, दे आर
in this universe from the existence of the causal ingredients such as earth. हमको स्थूल वस्तु में वो दिखते नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है ना उनके पास, धरती अग्नि जल वायु आकाश का, इसलिए. So they become invisible in the middle period and visible in the middle period when they get body, and after death they are invisible because again they have to leave their body. So even at the time of Mahapralay, this body exists in subtle form through the bodies, through the continued existence in subtle form of karmas and other elements. Thus all living entities' bodies are invisible before birth and after death. So Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that even at the time of Mahapralay, these bodies exist in a subtle form. Yes, true. And through the continued existence in subtle form of karmas and other elements. Due to karma, they are existed. They will get a body. And सृष्टि जैसे विनाश होती है, सृष्टि फिर से प्रकट होती है, तभी महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं सभी जीवात्माएं उस समय पे, जब तक सृष्टि निर्माण नहीं हुई तब तक. Thus all living entities bodies are invisible before birth and after death they are visible in the interval. भौतिक शरीर पंच तत्व का शरीर जैसे मिलता है तो विजिबल हो जाते हैं, पर जैसे उनको शरीर लिया जाता है उनका फिर से वो इनविजिबल हो जाते हैं. As नारद मुनि says, यन मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वनश्चोभयम सर्वथा नहि शोच्यस्तु स्नेहाद अन्यत्र मोहजत. O king, in all circumstances, whether you consider the soul to be an eternal principle or the material body to be perishable, or everything to exist in the impersonal absolute truth, or everything to be an inexplicable combination of matter and spirit, feelings of separations are due to only illusory affection and nothing more. भागवत में लिखा है कि भले तुम मानो आत्मा है या शरीर नष्ट होता है, आत्मा नित्य रहता है, या फिर तुम मानो ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, या फिर तुम मानो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर ऑफ स्पिरिट है या ये शरीर, फिर भी ये जो अफेक्शन है लोगों के प्रति, ये जो अटैचमेंट है, ये मोह ही है, ये माया का ही छलावा है. केशव कश्मीरी says that it should not under any circumstances be assumed mistakenly or believed that from a non-existence condition the existence was produced. ऐसे कई मायावादी लोग कहते हैं कि अव्यक्त था, कि इस श्लोक को वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ओके, सो दिस वर्स का कई मायावादी लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने काम के हिसाब से यूज़ करते हैं, कि कहते हैं कि यस कृष्णा इज सेइंग सी अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले हम अव्यक्त थे, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म पहले निराकार, पहले अव्यक्त है फिर व्यक्त हो जाता है, फिर अगेन, यानी भगवान कृष्ण भी क्या है, अव्यक्त है, पहले निराकार ब्रह्म है, फिर वो व्यक्त हो जाते हैं कुछ देर के लिए, एंड अगेन अव्यक्त हो जाते हैं. मतलब अंततः गत्वा सभी क्या है, निराकार ही है. इस पॉइंट को कन्वे के लिए ये श्लोक का प्रयोग करते हैं, पर ये नहीं समझना चाहिए. केशव कृष्ण क्लियरली वो कह रहे हैं ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए. बिकॉज ऑफ द कॉज बिंग नॉन एग्जिस्टेंस एंड द इफेक्ट इज नॉन एग्जिस्टेंस एंड द वर्ड इज ऑल्सो नॉन एग्जिस्टेंस. सो मिस्टेकली बिलीव दैट दिस मायावादीज सब कुछ मिथ्या है, ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए. दिस इज हैज ऑलरेडी बीन रिफ्यूटेड एंड क्लैरिफाइड बाय वेद व्यास इन वेदांत सूत्र. वेदांत सूत्र में इसका खंडन पहले से किया गया है. एज अ क्लोथ इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम इट्स थ्रेड्स एंड इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉज. सो हाउ कैन इट बी रिकंसाइल्ड दैट द समथिंग कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नथिंग एज दोज hypothesizing that existence can manifest from the non-existence. इस सृष्टि में ऐसा कौन सी वस्तु है जो नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंट हुई है? कोई भी चीज़ नहीं.
ये प्रकाश भी आता है हमारे सामने, जो लाइट बल्ब का प्रकाश है, वो प्रकाश भी नॉन एग्जिस्टेंस से नहीं आता है, एक बल्ब है, एक फॉर्म है, इस फॉर्म से एक प्रकाश, निराकार प्रकाश प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पहले अप्रकट था और इससे प्रकट कुछ चीज़ हो गई है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा अप्रकट अवस्था में थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, कॉटन होता है। तो ये जो कॉटन बाद में कपड़े के रूप में आता है, तो जो कपड़ा नष्ट होने के बाद फिर से उसी स्थिति में चला जाता है, वो नष्ट मतलब पूरी तरह गायब नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये सृष्टि, ये ब्रह्म ज्योति भगवान के स्वरूप जो है, वो कहते हैं पहले अप्रकट थे, ये गलत धारणा होगी। सो इफ यू वर टू एक्सेप्ट आवर ओरिजिन एज बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट, दैट वी कैन एक्सेप्ट दैट द ऑयल ऑफ सीजम सीड्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सैंड, बट दिस हैज़ नेवर सीन और हर्ड। ये ऐसा होगा मानो तिल का तेल, जो तेल है, अरे रेती से प्रकट हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज सब एटॉमिक, इट इज imperceptible, and yet it is still existing. Therefore, in the matter of the existence of living entities, the unmanifest imperceptibly subtle transform itself into the manifest by modification, which is known as birth, and after some time again transforms itself into the unmanifest, which is known as death. So when the correct understanding of birth and death is realized, then what possibly is the necessity for lamentation, as it is not befitting one who is situated in spiritual intelligence. तो केशव कश्मीरी बहुत ही अच्छा ये पॉइंट को प्रकट कर रहा है कि अनमैनिफेस्ट का मतलब है कि वो सटल है, सूक्ष्म होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है, अप्रकट लगता है हमें। तो जन्म से वो प्रकट हो जाता है, जन्म ये प्रक्रिया से वो प्रकट हो जाता है, फिर से मृत्यु से वो अप्रकट हो जाता है। तो इस जन्म और मृत्यु के सत्य को व्यक्ति जो जान लेता है, ऐसा व्यक्ति कभी विलाप नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त है। ओके, सो ये जो तर्क है, पहले अनमैनिफेस्ट, पहले अप्रकट है, फिर कुछ काल के लिए प्रकट हो जाता है, फिर अप्रकट हो जाता है। इस तत्व को, इस नास्तिकवाद तत्व को भी अगर कोई मान ले, फिर भी विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वैल्यू ही क्या है इस शरीर का फिर। सो दिस इज 28th वर्स वी हैव कंप्लीटेड। सो 29th वर्स वी विल हेड ऑन towards 29th verse. आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येन वेद न चैव कश्चित्। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कई बार हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि आत्मा जो है, आत्मा के बारे में कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि तब क्या होता है कि मान लीजिए किसी हार्ट अगर ट्रांसप्लांट किया जाए, आत्मा तो का लोकेशन है कि हार्ट में, आत्मा का निवास है हृदय में। तो ये हृदय को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तभी वो आत्मा क्या बदल जाती है, या फिर आत्मा कहाँ पे रहती है, तो आत्मा तभी कहाँ पे जाती है, ये जो पॉइंट्स उठते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्थूल निवास नहीं है। आत्मा वैसे तो स्पिरिट है, तो उसका निवास भी, इसके जो नियम भी होंगे, इसको लागू होंगे, वो स्पिरिट के नियम होंगे। जिस प्रकार शरीर स्थूल है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इनको जो नियम लागू होंगे वो जो भौतिक संसार के ही नियम लागू होंगे, क्योंकि भौतिक पदार्थ से बने हुए हैं। आत्मा को भौतिक संसार के नियम लागू नहीं होंगे, इसलिए काल जो है, काल का प्रभाव है वो आत्मा पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा का इज द लोकेशन ऑफ सोल, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में सोल वास कर रहा है। तो भले ही हृदय को निकाल क्यों ना दे, क्योंकि हृदय स्थूल शरीर का भाग है, ये भौतिक तत्वों, पंच तत्वों का हिस्सा है वो। तो शरीर जब अप्रकट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, क्या फिर आत्मा अभी किधर रहेगी या ढूंढती है जगह? नहीं, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर फिर अभी भी है। वो सूक्ष्म शरीर बाहर पड़ जाता है आत्मा को लेकर और फिर से नया शरीर धारण करता है, फिर से वही लोकेशन के नए शरीर के हृदय के अंदर वो फिर से प्रवेश कर लेता है। तो सीट बदलने से ड्राइवर नहीं बदलता, ये पॉइंट है। सीट भले ही कितनी बार बदले, ड्राइवर का लोकेशन वही होगा। तो उसी प्रकार आत्मा को जो है भौतिक नियम नहीं लगते। अगर आत्मा हृदय से अगर निकल गई तो भी कहाँ पे फिट होगी फिर? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एंड शरीर, क्योंकि शरीर तो नष्ट होता है तो आत्मा तो नष्ट नहीं होती, तो शरीर नष्ट होने के बावजूद भी
There are spirits which are, they have thinking, feeling, willing. मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर होने की वजह से अगर मन, बुद्धि, अहंकार बिना शरीर का रह सकता है तो आत्मा क्यों नहीं रह सकती? तो that's what we have to understand here. That's why it is said here in this translation of this 29th verse of 2nd chapter. Some look on the soul as amazing. आश्चर्य करने की बात है. पश्चति, सोल को देखते हुए आश्चर्य करते हैं. Some describe him as amazing. इसका वर्णन करते हुए आश्चर्य व्यक्ति को लगता है. And some hear of him as amazing. जो सुनने के बाद भी व्यक्ति को आश्चर्य लगता है. While others, even after hearing about him, cannot understand him at all. और इतना सुनने के बावजूद भी व्यक्ति आत्मा को समझ नहीं सकता है. इसलिए हमको क्वेश्चंस आते हैं कई बार. Purport by Srila Prabhupada. Since Gita-Upanishad is largely based on the principles of the Upanishads, it is not surprising to also find this passage in the Katha-Upanishad. Katha-Upanishad में ये सेम पैरेलल पैसेज जा रहा है. श्रवणयापि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्टः. The fact that atomic soul is within the body of a gigantic animal, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. आश्चर्य की बात है ना कि थोड़े से जगह में भी innumerous soul रह सकते हैं. There are germs in our body, there are innumerable germs in the body living with us. और उनके बॉडी में क्या फीलिंग हो रही हम नहीं जान सकते. ये these are individual souls. So men with poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge who imparted lesser lessons even to Brahma, the first living being in the universe. गीता भले ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं और कृष्ण अगर कुछ बताएंगे तो क्यों नहीं समझेगा किसी को. भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को समझा दिया, कृष्ण अर्जुन को समझाया है, पर फिर भी ऐसे जीव निकलेंगे जो भगवान कृष्ण की गीता को नहीं समझेंगे या आत्म साक्षात्कार को नहीं समझ पाएंगे. और ये सीधा उदाहरण जाता है धृतराष्ट्र के लिए भी. धृतराष्ट्र को भी ये चैप्टर पढ़ाया गया है, पर फिर भी जैसे चैप्टर होने के बाद, गीता पढ़ने के बाद फिर क्या बोलते हैं, चलो युद्ध में अभी क्या हो रहा है बताओ फिर से. तो जैसे हमारी जैसी दशा है, जैसे धृतराष्ट्र की दशा है, हमको धृतराष्ट्र को ज़्यादा निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको समझना है कि हमारे धृतराष्ट्र जो हमारी प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं. जैसे गीता सुनने के बाद, पढ़ने के बाद 1 घंटा जो लेक्चर सुनते हैं तभी बहुत लगता है हाँ हम आत्मा है, हम शरीर है. जैसे ही हम फिर से लेक्चर बंद करने के बाद फिर से वही काम काज शुरू हो जाता है, फिर से लगता है ये शारीरिक आवेश आ जाता है. लिफ्ट में चढ़ने के बाद आईने में देखते हैं कैसे दिख रहे हैं हम. एक पिंपल आने के बाद व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है कि पिंपल आ रहा है, मैं कैसे मंदिर जाऊँ, कैसे इधर जाओ, कैसे काम पे जाओ, पिंपल को कैसे छुपाऊँ. थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा कुछ लग गया, थोड़ा कुछ दांत में पेन आ गया तो हमको सहा नहीं जाता है, हम हरि नाम में भी रुचि नहीं आती है. इसे कहते हैं शारीरिक आवेश. और शारीरिक आवेश होने के वजह से शक्ति का आवेश नहीं होता है, शक्त्यावेश. भगवान कृष्ण किसी अद्भुत भक्त को शक्ति का आवेश दे देते अपनी, इसे उससे भी शक्ति के शक्त्यावेश अवतार कहते हैं. कभी कभी गौड़ीय संत, गौड़ीय मठ के जो वैष्णव हुआ करते थे वो प्रभुपाद जी को कहते हैं कि प्रभुपाद इज नन अदर दैन शक्त्यावेश अवतार ऑफ कृष्णा. कोई जीव को अद्भुत शक्ति जब भगवान प्रदान करते हैं, शक्त्यावेश कहते हैं. ये शक्ति का आवेश तभी आता है जब व्यक्ति माया के आवेश से जब बाहर निकलता है. जब तक माया का आवेश है, माया का राज्य है या माया का बंधन है या अधीन है कोई जीव, तो ऑब्वियसली अधीन होने के कारण वो किसी और पर समर्पण नहीं कर सकता. इसलिए व्यक्ति को गुरु पर शरणागति होनी चाहिए. इसको एकमेव गुरु ही बजा सकते हैं. गुरु और शुद्ध भक्त जो हैं, इनके शरण जाकर, इनकी सेवा कर कर व्यक्ति इनके द्वारा ही आध्यात्मिक अथवा अंतरंगा शक्ति के अधीन हो सकता है. अभी वो बहिरंग शक्ति के अधीन है,
इसलिए इतना सुनने के बाद आश्चर्य होता है उसे, और इतना सुनने के बाद भी कुछ उसकी बुद्धि में को प्रकाश नहीं पड़ता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं। ये बार बार स्मरण कराना पड़ेगा, और इसलिए गुरुजन होते हैं वो बार बार स्मरण करवाते हैं, तृणादपि सुनीचेन। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, भगवान के अंश हो। So men with poor fund of knowledge will never understand because they are not austere, cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit. ये important point है। जो austere नहीं, तपस्वी नहीं है, वो आत्मा को समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि शारीर का आवेश है ना। जो व्यक्ति एकादशी नहीं करते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं, वो एकादशी में ट्रिपल खाते हैं, 4 टाइम खा लेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई 4 टाइम खाता है तो वैसे इसकी सेवा भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इस खा कर बैठ गया है और पेट बढ़ा के रख रहे हैं। साधक को कभी वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए, वज़न ज़्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं साधक के लिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचारी है, साधक है, और इसका वज़न बढ़ते जा रहा है तो इसकी साधना ठीक नहीं हो रही। इसका मतलब वो इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में क्यों प्रॉब्लम क्या है, ब्रह्मचारियों के भी इस इशू है कि अभी ठीक है, अभी तो विवाह तो नहीं करेंगे और कुछ वैसे टीवी ये सब भी नहीं देखना है, बाहर घूमने विमने किधर गोवा में भी नहीं जाना है, तो पूरा इंद्रिय तृप्ति का जोर है वो पेट पे आ जाता है, वो जीभा पे आ जाता है, और इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते। स्वीट खाना, ये खाना, पकोड़े खाना, मालपुआ खाना। अभी टेम्पल तो देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी को भी ये सोचना चाहिए कि चलो डालते जाओ पेट के अंदर। इसलिए तुरंत अफेक्ट करेगा, इंद्रिय तृप्ति की लालसा बढ़ती रहेगी। इसलिए जब व्यक्ति तपस्वी नहीं है, गृहस्थ है, सोचता है कि लाइसेंस मिल गया हमको, चलो है पत्नी, इंद्रिय भोग कर सकते हैं जब चाहे, या फिर ठीक है कभी भी उठ जाओ, जब चाहे उठो, कौन देखा है, कौन थोड़ी आते हैं, प्रभु जी से बोलते आएंगे करके थोड़ी आने वाले। सुबह के टाइम पे उनका भी जप है, और कुछ लोग आरती भी अपना कभी भी कोई भी टाइम पे करेंगे। कोई लोग 8 बजे भी आरती करते हैं, महान लोग बोलते हैं उनको। ऐसे भागवत बहुत कम होते हैं जो 8 बजे आरती करेंगे, 9 बजे आरती करते हैं, मंगल आरती। कई लोग ये बोलते हैं कि तो भगवान तो लाला है ना, लाला थोड़ी जल्दी उठते हैं, लाला तो लेट उठेंगे, तो इसलिए वो 8-9 बजे स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाव है तो ठीक है ना, लाला है ना, तो लाला तो आप पर डिपेंडेंट है ना, तो अब लाला को घर पे छोड़ के क्यों बाहर जाते हैं? लाला को खिलाते रहिए, लाला तो बहुत बार मांगेगा ना खाने के लिए, तो आपको रहना पड़ेगा, कम से कम 8-10 तो भोग लगाने पड़ेंगे दिन में। तो ये डुप्लिसिटी है भगवान के नाम पर इंद्रिय भोग करना। अरे भगवान ने कहा है, महाप्रभु ने कहा है कंठ तक भोजन करो, खाओ। महाप्रभु ने कहा है कि प्रसाद ग्रहण करो, भगवान ने कहा है प्रसाद ग्रहण, तो प्रसाद के नाम पर इंद्रिय तृप्ति चलती है, तपस्या नहीं है। तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई एकादशी मीन्स नॉट ओनली फास्टिंग फ्रॉम फीस्टिंग, बट एकादशी ऑल्सो मीन्स फास्टिंग फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। वी आर नॉट सपोज टू, एकादशी बोलते हैं ना कभी कभी, अच्छे प्रभु जी भी एक लेक्चर में बोल रहे थे कि एकादशी में मतलब फास्टिंग फ्रॉम व्हाट्सएप ऑल्सो, फास्टिंग फ्रॉम फेसबुक ऑल्सो, फास्टिंग फ्रॉम मोबाइल। हम जो समय गवाते हैं इससे भी फास्टिंग करना चाहिए। तो एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, ये एकादशी का मतलब भगवान की सेवा में सदैव रहना, उपवास, भगवान के निकट वास करना, इसे कहते हैं उपवास। एकादशी का कभी तात्पर्य बन जाए कि वज़न घटाना की, और अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं लोग, तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, दुख लगता है, वज़न घट गया है, अच्छा लगता है। ये शारीरिक आवेश, अगेन शारीरिक आवेश जब तक तीव्र है तब तक ना गीता समझ में आएगी, ना आध्यात्मिक प्रगति होगी, ना भगवान समझ में आएंगे। शारीरिक आवेश का घटाना मतलब भगवान की सेवा को बढ़ाना। व्यक्ति को शरीर को अपने भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। धन का आवेश होता है, शरीर के इंद्रिय तृप्ति का आवेश होता है, भोजन का आवेश, अन्नमय स्थिति जिसे कहते हैं। ओके, सौंदर्य का आवेश है किसी को ज्ञान का आवेश होता है, भौतिक ज्ञान का आवेश, किसी को अपने जन्म कुल के घमंड, उसके ऊपर आवेश होता है। आवेश है भौतिक चीज़ों में कई। धन का आवेश तभी कम होता है जब धन भगवान को दिया जाता है। शरीर का आवेश तभी कम होता है जब शरीर भगवान की सेवा में लगाया जाता है। ज्ञान का आवेश तभी जब ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। हमारे टैलेंट का भी हमको घमंड होता है, आवेश होता है, मुझे ये सब आता है, ये भी कर सकता हूँ, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए सदैव। ऐसे करते करते ग्रेजुअली वो आवेश जो है
वो कम हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति का जो आवेश है कम हो जाएगा, हम भगवान की तृप्ति के लिए कार्य करने लग जाएंगे। जैसे प्राथमिक अवस्था में क्या होता है कि हम जब कुछ करते हैं हमको प्रशंसा की अभिलाषा होती है, ठीक है, अच्छा लगता है, एनकरेज भी करते हैं भक्त लोग, हम प्रशंसा के लिए करते हैं। पर जब स्लोली ग्रेजुअली व्हेन वी प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ देन इफ यू डू फॉर लॉर्ड्स प्लेजर, भगवान की तृप्ति के लिए करते हैं, भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं, ये भाव आ जाएगा। तो इस शारीरिक आवेश को निकालना पड़ेगा, नहीं तो धृतराष्ट्र बन जाएंगे फिर। इससे ऐसे लोगों का आश्चर्य लगता है, अभी भी सुनने के बावजूद भी चेंज नहीं आते हैं। सो मैन लुक एट द सोल प्रॉपर एज वंडरफुल। सो भगवान ब्रह्मा जी को सिखा सकते हैं, अर्जुन को सिखा सकते हैं, क्या हमको नहीं सिखा सकते? फिर हमको सिखाने के बावजूद भी हम सीखते नहीं हैं। ये धृतराष्ट्र की पद्धति है। कर्ण को इतना बताने के बावजूद भी अकल नहीं काम करे कर्ण की, क्योंकि दुर्योधन का संग है ना, असत संग यही वैष्णव आचरण, असत संग त्यागत यही वैष्णव आचरण। असत संग आपके पास है, स्त्री का संग है, या पुरुष से आसक्त है, स्त्री से आसक्त है, या अपने देहापत्य कलत्र इनसे आसक्त है, संबंधी से आसक्त है, शरीर से आसक्त है, अपने धन से आसक्त है, ये ज्ञान काम नहीं करता उस समय पे। फिर आप ज्ञान लेंगे, भक्ति शास्त्री कोर्स भी कर ले, वो एग्ज़ाम के लिए तक ही का साथ आएगा। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म फिर से वही भौतिक आवेश, और मृत्यु के समय पे ये ज्ञान उस समय पे काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका आवेश क्या है, शारीर आवेश में है ना। इसलिए तो ज्ञान अर्जित करना है भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट के लिए नहीं, या किसी को दिखाने के लिए, या कि लेक्चर प्रिपरेशन के लिए नहीं, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक आवेश कम होता है कि नहीं, ये दिन प्रतिदिन चेक भी करना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये लक्षण है। धन के प्रति आसक्ति बहुत प्रबल है व्यक्ति की, इसको घटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं घटा देंगे तो हमारी जो भगवान के वस्तुओं को भी हम अपने लिए यूज़ कर देंगे। फिर हिज मैनिफेस्टेड फॉर्म, यहाँ पे सच मैन लुक एट द सोल प्रॉपर एज वंडरफुल आइदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय डिस्क्रिप्शन। Owing to gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. लोगों को समझ में ये नहीं आता है, आत्मा की अद्भुत ये चीज़ है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है तो कोई हाथी इतना बड़ा दिखता है और चींटी इतनी छोटी दिखती है, ये कैसे? उसके डायमेंशन को लेकर, उसके डिस्क्रिप्शन को लेकर, illusioned by the material energy, people are so engrossed in subject matters for sense gratification that they have very little time to understand the question of self-understanding, even though it is a fact that without this self-understanding all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. पहले ही फॉर्मूला गलत डाल दिया सम में, पहले स्टेप पे फॉर्मूला एप्लीकेशन होता है, आपको सम सॉल्व करने दिया, पहले एप्लीकेशन में गलत फॉर्मूला डाल दिया और फिर बैठ गया व्यक्ति सम सॉल्व कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है नीचे, फाइनल आंसर आ गया गलत, क्योंकि फॉर्मूला गलत। पहले ही फॉर्मूला गलत हो चुका है, जैसे ही जन्म लिए पहले बोल दिए ये मम्मा है, ये पापा है, ये चाचा, ये मामा, तुम सो एंड सो। फिर किसी ने ऐसे टीचर बोलती है ऐसे लिखो, टेल मी समथिंग अबाउट योर, फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसे लिखो, माई नेम इज़ दिस, माई पापा इज़ दिस, माई मदर इज़ दिस, माई आई एम डू दिस, माई टैलेंट इज दिस। तो ये बोलने लगता है, इसको सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हुए अगर ये बोल देगा ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलेगा आपको। ये सिखाया जाए, ये पढ़ाया जाता है, ये संस्कार है। तो ओरिजिनली द सोल को ये पहले से ही उसको ऐसे ज्ञान दिया जाता है, भौतिक ज्ञान, कि व्यक्ति को प्रगति करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। नया नो वन इज इंस्पायरिंग हिम टू अंडरस्टैंड दैट ही इज सोल। और ऊपर से क्या है, बाद में वो भी ऐसा बन जाता है व्यक्ति कि टाइम ही नहीं है उसके पास। कोई पूछेगा गीता पढ़ रहे हो क्या, बोले टाइम ही नहीं है। भक्तों को टाइम नहीं है, अभी भक्तों को थोड़ी टाइम है, अभक्तों का तो विचार ही छोड़ दीजिए, भक्तों को ही टाइम नहीं है। भक्तों के समाज में पूछ लीजिए कितने लोगों ने गीता समझी है, या गीता के बारे में आप थोड़ा 15 मिनट बोल सकते हैं क्या? भगवद गीता के बारे में 15 मिनट बोल दीजिए आप। डोंट रिपीट द स्टेटमेंट्स, बट नहीं तो पता चला एक ही स्टेटमेंट रिपीट करे बार बार 20 बार, बोले यही हो गया 15 मिनट। नहीं, डोंट रिपीट द स्टेटमेंट्स, अब 15 मिनट बोल दीजिए गीता के बारे में। भगवान कृष्ण 2nd चैप्टर में क्या बोलते, चलो 5 मिनट्स बोल दीजिए उस पर, उसमें भी प्रॉब्लम। गीता समझ में नहीं। अभी अर्जुन की स्थिति देखिए, एक बार गीता बोल दी समझ लिए, और यहाँ पे धृतराष्ट्र की स्थिति है, इतने बार समझाया। गीता के पहले भी अक्रूर को भेजा था, विदुर ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, फिर समझने का नाम नहीं, शारीरिक आवेश के कारण। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लेवल
गीता कैनॉट बी अंडरस्टैंड जस्ट बाय इंटेलेक्चुअली। आप सिर्फ गीता के श्लोकों को पढ़कर ये ठीक है थोड़े हद तक समझ पाएंगे, पर इस समझ के भी वो काम नहीं आएगा आपके ज्ञान। थियरी समझ के भी वो ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गीता आपको अगर काम आनी है तो आपको गीता के काम आना पड़ेगा। भगवत गीता का काम आना मतलब क्या है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मत भक्तो, यही संस्पर्शदा होगा दुख में। ये इंद्र तृप्ति में व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए, दुख का कारण है। वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग गीता मीन्स वी हैव फॉलोइंग, वी मस्ट फॉलो गीता। भगवान जो बोल रहे इसके एक एक वचन को पालन करना जीवन में, ये गुरु की आज्ञा को पालन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे करने से ग्रेजुअली व्यक्ति में वो रियलाइजेशन आती है। फल पकना चाहिए, फल कच्चा रहेगा तो मतलब ही नहीं है, वो खट्टा होगा, फिर भगवान को खट्टा फल ऑफर नहीं करना है। इसे पकाना चाहिए, पकना, भक्ति में पकना चाहिए हमको। ये पकता है जब तक पेड़ में आप रहते हैं ना, वो फल पहले ही कच्चे की हुई निकल गया, अगर टूट गया, नहीं मैं मुक्त हो गया अभी, चलो बाबा मुक्त हो गया, चलो पेड़ से टूट गया, वो कच्चा ही रहेगा, सड़ जाएगा। फल जब तक पेड़ में है वो पकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी, संप्रदाय में इतना हमको चिपक के रहना पड़ेगा, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में, पकने तक। और अगर पक गया ना तो दिन भगवान को ऑफर होगा फल। टिल देन यू विल बी नॉट ऑफर टू लॉर्ड। ओके, इसे गुरु ऑफर करेंगे भगवान के तभी जब पक गए। सो दैट्स व्हाट हियर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इवन दो इट इज अ फैक्ट दैट विदाउट दिस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑल एक्टिविटीज रिजल्ट इन अल्टीमेट डिफीट। पहले फॉर्मूला में गलत हुए, आप कितने भी योजना बनाए, फॉर्मूला एप्लीकेशन गलत हो गया ना कि आप शरीर है करके, ये सिखाया गया आपको, तो कितने भी आप योजना बनाए आप सुखी नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, क्योंकि आधार ही गलत है कि मैं शरीर हूँ और ये माता पिता मेरे शरीर है, मेरी पत्नी शरीर है, मेरे बच्चा शरीर है, ये आधार गलत हो गया। ये कितने भी प्रयास करने के बाद, कितने भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चा खुद सुखी नहीं होता है। गलत संग की वजह से वो अवैध स्त्री संग करता है, फिर वो ड्रग्स लेता है, एंड दिस एंड दैट। ये क्यों है? क्योंकि उसको जो मूल संस्कार है आत्मा का साक्षात्कार वो नहीं दिया गया। ही कैन नॉट बी हैप्पी। सम पीपल, so there is a defeat in struggle for existence. Perhaps they have no idea that one must think of the soul. They have no idea. Thus they make a solution to the material means. हमारा पूरा समय आप देखिए, आप भक्तों का देखिए, भौतिक लोगों को छोड़ दीजिए, हमारा ज़्यादा समय बीतता है हम कैसे अपने भौतिक प्रॉब्लम्स को निवारण करें, है या नहीं? गृहश कुटे धर्मेशु कुर्वन् दुख प्रतिकारं दुखवन सुखवन मन्यते गृही। हर गृहस्थ के लिए यही सुख बन गया है कि कैसे मैं प्रॉब्लम्स का निवारण निकालूं। वो भक्ति भी करता है, यही सोच के करता है कि मैं पहले प्रॉब्लम्स को निवारण निकालता हूँ, फिर मैं अच्छी तरह से भक्ति कर सकता हूँ। मैं अभी मेरे ये खर्चे निपटा देता हूँ, फिर मैं दान करता हूँ। वो कभी नहीं आता है। पोस्ट डेटेड चेक हैज़ नो वैल्यू। Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of super soul, the atomic soul, their respective functions and relationships, and all other major and minor details. And it is still more difficult to find a man who has actually derived full benefit from a knowledge of the soul, and who is able to describe the position of the soul in different aspects. But if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा। ये सेकंड चैप्टर आप समझ लेंगे तो आपकी भक्ति की लड़ाई, युद्ध जो कर रहे हैं आप माया से, आप 90% जीत जाएंगे तुरंत। 90%, अब डायरेक्ट 92, सांप सीढ़ी में 92 में की सीढ़ी पे चढ़ देंगे डायरेक्ट। होता है ना, शुरू में ही बड़ी सीढ़ी लग जाती है। दिस वेरी शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड यू आर सेल्फ, यू आर सोल, यू आर नॉट बॉडी। कोई भी फिलोसफी समझने से पहले ये समझना चाहिए कि हम सोल हैं, हम शरीर नहीं। रासलीला हो, ध्रुव महाराज की कथा हो, प्रहलाद महाराज की कथा हो, कोई भी हो, आत्म साक्षात्कार के बिना कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे। दुर्लभ व्यक्ति है ऐसा जो ये समझ सकता है कि वो जीवात्मा है और भगवान में और मेरे में क्या भेद है। मैं भगवान विभु है, मैं अनु हूँ, भगवान के ऊपर मैं निर्भर हूँ। भगवान और आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें फंस जाते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, और इसमें भी व्यक्ति, बहुत दुर्लभ व्यक्ति वो है जो भगवद गीता को समझता है, जीवन में साक्षात्कार करता है।
Therefore, the easiest process for understanding the subject matter of the self, however, is to accept the statements of the Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories. But it is also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. Again, this statement is very important. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. Even Chaitanya Charitamrita has this verse. महतेर कृपा बिना कौन कर में भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहूं संसार नाही क्षय. बिना शुद्ध भक्त की कृपा के अलावा व्यक्ति को भगवत धाम तो बहुत दूर की बात हो गई, भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात हुई, वो संसार को भी क्रॉस नहीं कर सकता है, वो मुक्त भी नहीं बन सकता. दैट्स वाई we have to beg mercy from the pure devotee of Lord by serving him. Then only gradually, if he want, then only we will progress in the science of self-realization, and not just by theoretical understanding of the scripture. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. दिस इज द 29th वर्स. आश्चर्य, यह आश्चर्य की बात है आत्मा को जानना, आश्चर्य की बात है आत्मा के डायमेंशन को देखना, आश्चर्य की बात है ये आत्मा कैसे वास करता है शरीर में. इतना सुनने के बावजूद भी आश्चर्य लगता है, समझ में क्यों नहीं आता है. तो आश्चर्य की बात है कि हम गीता भी नहीं पढ़ते हैं, अच्छी तरह से नहीं पढ़ते. आश्चर्य की बात है ना गीता को समझते हैं. आश्चर्य की बात है गीता के सिद्धांत को पालन नहीं करते हैं, फिर भी हम प्रचार करते हैं. यह आश्चर्य की बात है. वर्स 30. देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि. ये बहुत रिपीटेटिव वर्ड है, शोचितुम, शोचितुम. ओके, अन्वशोचितुम, शोचति, न शोचति न कांक्षति. ओके, शोचति इज लैमेंट. O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Okay. Therefore, you need not grieve for any living being. भगवान कृष्ण बार बार दोहरा रहे वही चीज. देही जो है, जीव जो शरीर के अंदर है, उसको नहीं मारा जा सकता अर्जुन, इसलिए तुम विलाप ना करो कोई भी जीव के लिए. ओके, भगवान ये अपेक्षा करते हैं कोई भी भक्त किसी भी की मृत्यु पे विलाप ना करे. ओके, विलाप तभी होता है जब सेपरेशन होता है, खास करके जब गुरु सेपरेट हो, तो गुरु से जीव जब सेपरेट हो जाता है तभी विलाप होता है. भगवान कृष्ण से कोई सेपरेट हो जाता है तभी विलाप होता है. सो विलाप नहीं करना. The Lord now concludes the chapter, purport here it is, the Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. यहाँ पे भगवान विराम दे रहे हैं अभी आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में बता के यहाँ पे विराम देने वाले हैं अभी. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. कई सिद्धांत प्रकट करते हैं, कई स्टेटमेंट्स को बता रहे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं. एक ही सिद्धांत को स्थापना करना चाहते हैं कि आत्मा परमानेंट है, इटर्नल है, पर शरीर जो है नश्वर है, नष्ट हो सकता है. Therefore, Arjuna as a Kshatriya should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher Bhishma Drona will die in battle. On the authority of Shri Krishna, one has to believe that there is soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, nor that living symptoms develop at certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. Though the soul is immortal, violence is not encouraged. But at the time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not capriciously. Very important.
अलग अलग स्तर पे भगवान समझा रहे हैं कि हम शरीर में आत्मा है, और यह भी तर्क को ठुकरा रहे हैं कि अगर कोई केमिकल समझता है, पूरे बॉडी को मैटर समझता है, तो भी विलाप करने की आवश्यकता नहीं। पर वैसे इस तर्क को हम नहीं अपनाते, हम भगवान कृष्ण के स्टेटमेंट्स को ही अपनाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, नष्ट शरीर होता है, आत्मा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को हानि पहुंचाया जाए, किसी को शरीर को वेदना दी जाए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्म बंधन में फंस सकता है। बिना भगवान के अनुमति से व्यक्ति ऐसे कोई भी कार्य नहीं कर सकता शरीर नष्ट करने वाली, ना अपना शरीर ना दूसरों का शरीर। जिस प्रकार सोल्जर हैज़ नो राइट टू किल एनीवन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अ पुलिस हैज़ नो राइट टू शूट until there is no sanction from the authority. Okay, so similarly we have to understand that there is no need for any lamentation of any problem. ना जीते वक्त हमको विलाप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, या मरते के समय तक। So here we complete the 38th verse. Any question? नहीं, पार्डन, फिर से बोलिए। जैसे अभी जो सोल का कॉन्सेप्ट है, फिलोसॉफी है, सन्यासीज नो इट वेरी वेल कि सब सोल है, तो उस लेवल पे तो कोई मेल फीमेल है नहीं ना, प्रभु डिस्टिंक्शन नहीं है। औरतों को पीछे पीछे मतलब दूर क्यों रखते हैं? महाप्रभु स्वयं इस चीज़ को पालन किए हैं। महाप्रभु भगवान होने के बावजूद भी जब वो जो भक्त अवतार लेते हैं, सन्यासी आश्रम में धारण करते, तो माताओं को दूर से ही प्रणाम करने के लिए कहते हैं। एंड एक तरफ रामानंद राय है, ही इज डेकोरेटिंग देवी दासीज ऑफ पुरी टेम्पल। रामानंद राय इज अ गृहस्थ एंड इज डेकोरेटिंग देवी दासीज। भगवान के प्लेजर के लिए वो देवी दासी नृत्य करते थे, गायन करते थे जगन्नाथ के लिए, और उनको वो डेकोरेट कर रहे हैं, उनको वो नहला रहे हैं। एंड दीज देवी दासीज आर यंग लेडीज। ये रामानंद राय की ये स्थिति है। और महाप्रभु कहते हैं भागवत, ये रामानंद राय एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट रामानंद राय, किसी को याद है? मैं अभी जस्ट नाम भूल गया। वेरी अच्छा नाम है उन्हीं के, जिसमें भागवत पढ़ने के लिए मुकुंद बोलते कि मुझे भागवत सुनना है, तो मुकुंद को ये गदाधर पंडित बोलते कि भागवत तो दीक्षा लेने के लिए वो किनके पास है? वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जस्ट मिस किया मैंने। जस्ट अ सेकेंड, मैं भूल गया। याद करके दो मुझे। तो लिपाष्टम ऐसी हैं कि महाप्रभु के ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो उनको डिफरेंशिएशन नहीं, महाप्रभु ऐसे डिफरेंस करते हैं। क्योंकि यदि यद आचर्य श्रेष्ठ तत्त देवतो, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करेंगे वैसे सामान्य लोग उसका पालन करेंगे। तो इसलिए कभी कभी श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण दिखाने के लिए भक्तों को व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए, यू शुड नॉट टेक एनी रिस्क, बिकॉज कृष्णा सेज इन गीता ना, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञान नित्यवैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णानेन च, कि काम इतना डेंजरस है, इवन इफ यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, दुष्पूर्णान, वो नॉलेज को भी ढक सकता है। एंड इफ वन बिकम्स लस्टी, हिज माइंड विल नॉट वर्क दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन। क्योंकि इंद्रियाणि मनानि परानि इंद्रियस्य मनोबुद्धिर यस्य अधिष्ठानम उच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जो काम है इट सिट्स, उसका निवास स्थान जो है कहाँ पे है? सेंसस में है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, और मन में है और बुद्धि में भी है। सो इवन इफ ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज,
But if he comes in contact with a woman, there's a high possibility he will fall down. Okay? सब लोग हरिदास ठाकुर नहीं है ना, वो स्थिति नहीं है सबकी कि वैश्या आ गई उनको रिझाने के लिए और हरिदास ठाकुर ने उनको भक्त बना दिया। और अगर ऐसा कोई हो गया ना तो उल्टा हो जाएगा पूरा। वो कोई दूसरा कोई रहेगा तो नॉर्मल एक कनिष्ठ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अलाउड। दैट्स वाई इवन श्रेष्ठ आचरण दिखाने के लिए भी व्यक्ति को ऐसे नियमों को पालन करना चाहिए। भले आप कितने भी मुक्त क्यों ना हो, पर फिर भी आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए और दूसरों को आदर्श दिखाने के लिए भी करना चाहिए। तो पॉइंट ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है इसलिए तो वो प्रीचिंग कर रहे हैं ना सबको, वो भेद प्रीचिंग में नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल प्रॉक्सिमिटी तो भेद कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर तो भौतिक ही है ना, फिर भी शरीर तो स्पर्श होगा तो फिर इफ़ देयर इज़ फ्रिक्शन, इसलिए शास्त्र कहता है बटर जो है वो फ्रीज़र में अब 20 साल रखने के बाद भी उसको अग्नि के पास लेके आएंगे तो फिर वो मेल्ट ही होना है। दैट्स आई वांट टू नॉट टेक एनी चांस। ये दैट्स वाई वानप्रस्थ वालों को भी, इवन हस्बैंड वाइफ, फॉरगेट अबाउट इवन सन्यासी ब्रह्मचर्य की तो बात है, एटलीस्ट उनको आश्रम का तो प्रोटेक्शन है। व्हाट टू टॉक अबाउट गृहस्थ, उसके सामने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन का क्या बोलते हैं उसको, सोर्स है। एंड फॉर हिम इवन आफ्टर 50 ईयर्स सेंसेस तो एक्टिव होएंगे, हो सकता है, मन तो वही यंग है ना, मन तो थोड़ी मानने वाला है। आइदर दे एंड अप हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल दैट, और देर आर सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग अटैच्ड विथ पोर्नोग्राफी इवन एट ओल्ड एज, एंड even it's very difficult to control sensual life without a proper guidance of a spiritual master or without a mercy of spiritual master। और बहुत तपस्या, दैट्स वाई ऑस्टियरिटी है ये, इसलिए वनप्रस्थ में बहुत बड़ा ऑस्टियरिटी होता है, वनप्रस्थ लाइफ जो है। सो ये डिफरेंस करना पड़ेगा अनटिल अनलेस वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी। ओके, ये डिफरेंस नहीं होगा जब भगवत धाम में जाएंगे। ओके, there will be, you will find, but there are exceptional cases who are not having such difference। कोई सिद्ध पुरुष है तो वो कर सकता है, पर सिद्ध पुरुष कभी समझना नहीं चाहिए अपने आप को, फिर माया ढकेल देंगे फिर तुरंत, तो डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इवन व्हेन इट्स कम टू बिकमिंग अ गुरु, वुमन गुरु इफ दे बिकम, एंड अगर उनके डिसाइपल्स मेल निकलेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये, हाउ दे विल सर्व। So dangerous है। That's why for safer side these rules are follow। Okay, any question? नरोत्तम दास ठाकुर उनके शिक्षा गुरु मानते थे जानवा माता जी को। ओके, जानवा माता जी बहुत ही, ये कई बार ये आर्गुमेंट होता है कि जानवा माता जी दीक्षा दिए हैं या ये फिर इनिशिएशन दिया, ऐसा कुछ, या उन्होंने गुरु करके ही शी एक्टेड एस, यस वो एक्टेड बिकॉज शी इज़ अ कंसोर्ट ऑफ नित्यानंद प्रभु। वो शक्ति हैं और वो नियमों को तोड़ सकते हैं या नो नियमों के ऊपर हैं, तो वो शक्ति की तुलना जीव से नहीं हो सकती, कोई जीव उस शक्ति की तुलना में नहीं आ सकता। भगवान की शक्ति है इसलिए वो ऐसे कर सकते हैं, वो बहुत ग्रेट हो सकता है, दैट्स वाई। और पूजनीय क्या बोलते हैं, वर्शिप, जब व्यक्ति उनको देखता है ना तो एक वर्शिपिंग भावना आ जाएगी उन पर, मतलब एक पूजनीय, पूजा करने जैसे भावना आएगी। जैसे ऐसे दुर्गा माता को देखते हैं तो ऑब्वियसली एक रेवरेंस की भावना आनी चाहिए आइडियली। आसुर लोगों की लस्ट की भावना आई है। भस्मासुर ने जब दुर्गा माता को देखा तो सोचे कि मैं उनको चाहता हूँ, ये शिव जी के बीच में आ गए, ये भावना आ गई। रावण ने जब सीता माता तो लस्ट आया, तो बट इफ़ यू सी डेमीगॉड्स आर सीइंग सीता माता, या वानर सेना भी सीता माता को देख रहे हैं, तो लस्ट नहीं आ रहे वहाँ पे रेवरेंस आ रहा है। तो ये बहुत डिफरेंस है। जब देवता लोग मोहिनी को देख रहे हैं उनको लस्ट नहीं आ रहा है, पर असुर लोग देख रहे हैं तो लस्ट आ रहा है। तो पॉइंट है, मतलब ये पूजनीय स्थिति भी होनी चाहिए, मतलब वो व्यक्ति भी वैसा उतना उसका वाइब्रेंस होना चाहिए कि व्यक्ति अपने आप व्यक्ति सम्मान भी करे। द पॉइंट इज दैट जस्ट बाय देर आर पीपल आर सो लस्टी नाउअडेज, बाय जस्ट बाय थॉट ऑफ अ वुमन दे बिकम लस्टी, और जस्ट बाय हियरिंग द वॉइस ऑफ अ वुमन दे बिकम लस्टी।
सेम थिंग हैपन्स विद द मैन एंड वुमन बोथ, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैन को ही, बट यस फॉर अ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू कंट्रोल लस्ट, दैट्स वाई, इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए. बट यस देर आर एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, और कई आपको इवन इस्कॉन्स में भी एक्सेप्शन मिलेंगे. देर आर प्रीचर्स हु हैव कभी कभी बहुत ही आसपास ही होते हैं, सन्यासी कीर्तन कर रहे हैं, बहुत ही आसपास में माताएं भी होती हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड बहुत एक्सॉल्टेड लेवल पे वो, और इसकी इनका निंदा भी नहीं होना चाहिए. अगर निंदा करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा. ऐसे हुआ है कई लोगों का, गलती से हम लोग स्वयं एक्सपीरियंस भी कई लोगों को देखें, जैसे निंदा करते हैं, अरे ब्रह्मचारी ये देखो बात कर रहे हैं माता जान, वही लोग ही निकल गए. हमारे आश्रम में ऐसे कई लोग थे, तो एक उदाहरण था, यूज्ड टू क्रिटिसाइज, अरे क्या इनके ग्रुप में ऐसा है, वो लड़का ऐसा करता है, वो ब्रह्मचारी ऐसे बात करता है, ये वो. द पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू क्रिटिसाइज देन गॉन, तो अपराध हो जाएगा. अगर उसके मन में कुछ नहीं है तो देन ऑफेंस तो लगेगा 100% ऑफेंस लगेगा. तो इसलिए वी शुड नॉट बी जजमेंटल ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज इस्कॉन इज एन इंटरनल कॉन्शियस इंटरनल सोसाइटी है अभी. और कई एक बार तो ऐसे इंसिडेंसेस हुआ है कि ब्रह्मचारी को, एक ब्रह्मचारी था फॉरेन कंट्री में, ब्रह्मचारी था और बाहर उनको थोड़ी पता है कल्चर क्या है, तो वो वहाँ की तो स्त्रियाँ तो सीधे सीधा आलिंगन देते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रेसिंग. ब्रह्मचारी को अभी व्हाट ही कैन से, ही डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. तभी उस टाइम पे जजमेंटल नहीं हो सकते, वी डोंट नो नो. और उसने तो नहीं गया, वो तो नहीं गया. एक बार तो केक खा रहा था एक ब्रह्मचारी, एंड वो एक लड़की आई और सीधा उसके हाथ से केक, उसके मुख से केक निकाल के खाई. ऐसे भी हुआ है. तो इट्स सच अ डेंजरस सिचुएशन. बट स्थान काल पात्र से कभी कभी बहुत चीज़ें को हमको देखना पड़ता है, तो इसलिए जजमेंटल भी नहीं होना. एट द सेम टाइम दिस थिंग अप्लाई टू अस. एप्लीकेशन सदैव पर्सनल लेवल पे होना चाहिए, ना कि पब्लिक लेवल पर, कि पब्लिक क्यों नहीं फॉलो करता है, ये क्यों नहीं फॉलो करता है, वो कि इसमें ऐसा लिखा है, वो क्यों नहीं फॉलो करता है, तो हमारा पतन हो सकता है इसमें. दूसरा जो करे वो करे, हमको क्या, कृष्ण और वो जाने. कृष्णा एंड डिवोटी रेसिप्रोकेशन उनका मत पता है, उनका पता है. इसलिए महाप्रभु का और उनका लीला है बाबा, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम तो सेफर साइड में रहेंगे. दैट्स व्हाट. एनी अदर क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट. प्रभु जी, जैसे अभी कभी कभी हम बोलते हैं कि वो है मतलब उनके लेवल पे है तो वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. पर कभी कभी बोलते हैं वो ऐसा आचरण करते ताकि उनको फॉलो करें. जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी बने तो अपने हाथ दिखाना चाहते हैं. तो फिर ये दोनों में से कभी कभी समझ में नहीं आते क्या करें क्या नहीं करें. जैसे चित्रकेतु महाराज की कथें आती हैं. चित्रकेतु महाराज जब देखते हैं शिवजी ने पार्वती माता को गोद में बिठा दिया है और सभी ब्रह्मचारी लोग कथा सुन रहे हैं, सभी ऋषिमुनि लोग कथा सुन रहे हैं, चित्रकेतु महाराज वहाँ हंसते हैं. वहाँ पे दोनों पक्ष स्थापित किए हैं. एक पक्ष ये है कि शिवजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, शिवजी श्रेष्ठ आचरण करने, शिवजी श्रेष्ठ व्यक्ति है, और उसको देख के ना कई मूर्ख लोग उनको फॉलो कर देंगे, भरोसा नहीं. और दूसरा चीज़ ये है कि शिवजी इतने महाभागवत हैं, पत्नी को गोद में बिठा के भागवत कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता. ये भी प्रशंसा भी है. तो चित्रकेतु महाराज वही कर रहे हैं ना, चित्रकेतु हंस पड़े. अभी दोनों भाव है यहाँ पे. पहला ये हंस पड़े कि देखो शिवजी कितने महान है, हाँ, अरे भागवत कथा करे पत्नी गोद में, पर फिर भी विचलित नहीं होते. और दूसरा ये कथा एक साइड में बोल रहे हैं, शिवजी आप इतने महान हैं, आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे. दोनों पॉइंट है. वी हैव टू अंडरस्टैंड एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस. हमको पता करना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. इसलिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड नॉट बी जजमेंटल. ये सेफर साइड में अच्छा है कि आप भले ही कितना भी मुक्त क्यों ना हो, पर फिर ये इसको दर्शन, इसको सबके सामने अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि लोग निंदा भी कर सकते हैं, और फिर निंदा हो जाएगी तो फिर उनका नुकसान है. आपका तो नुकसान नहीं होगा, मे बी आप उस लेवल पे है, पर उनका नुकसान हो जाएगा. फिर सेफर साइड में है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, जैसे प्रभुपाद जी के भी एक फ़ोटो आया था जिसमें मालती है कोई डानवा मत नहीं, एक फ़ोटो था माता जी के साथ हुआ. तो प्रभुपाद ने मना किया, ये फ़ोटो क्यों नहीं तो फ़ोटो लोग क्या बोलेंगे, फिर बोले इसमें फिर नुकसान हो जाएगा फिर उनका, बड़े आई एम सन्यासी. पर आप देखेंगे कई ऐसे वाले फ़ोटो आए हैं कि प्रभुपाद के माताओं के साथ है, फिर प्रभुपाद हाथ भी रख रहे हैं. इवन बीबी गोविंद, एक नाम नहीं ले सकता, अभी लेक्चर ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है. देर आर सम सन्यासीज ऑल्सो, उनकी भी ऐसे फ़ोटोज़ हैं.
और फिर इसका वो लोग ये करते क्रिटिसाइज करते हैं, एंड ऋत्विक ऑल्सो दे आर क्रिटिसाइजिंग इट एंड समथिंग लाइक दैट. बट प्रॉब्लम ना नुकसान इन लोगों को होने वाला है. पर दोनों साइड अभी कभी कभी तस्मात अपरिहार्यते न तुम सोचितुम अर्हसि. तो जब ऐसे स्थितियाँ आ जाती हैं कर्तव्य करने की, तब वी कैन नॉट समटाइम्स वी डोंट हैव बैकअप नहीं होता है. कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको बात करना पड़ता है. कभी कभी आप देखें, कभी कभी पॉपुलर हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारीज हैं, तो उन लोग कभी कभी माताओं के साथ फ़ोटो भी लेते हैं. अब अगर नहीं बोलेंगे तो फिर वो भी निंदा होगी. आजकल उल्टा होता है, अगर आप ज़्यादा भी फैनेटिक हो जाएंगे ना, उल्टा निंदा हो जाता है कि ये ज़्यादा ही खुद को खूब फैनेटिक समझता है, ये है एंड वो है, दे आर हेटिंग वुमेन, दे आर वुमन हेटर्स. ये भी हो जाता है आजकल. तो दोनों पक्ष है. इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ टू सेटिस्फाई द बोथ. यानी भक्तों कम्युनिटी में कभी क्रिटिसिज्म होता है, करे ज़्यादा ही फ्रीली बोलते हैं ये लोग मीडिया में जाते हैं, ये लोग इसको बोलते हैं, रिपोर्टर से बात करते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म भी होता है. दोनों पक्ष को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते. कभी ये पक्ष नाराज़ हो जाएगा, कभी वो. तो स्थान काल पत्र ये तो होते रहेगा, बट व्हाट टू डू. तो निंदा इवन भागवत लोगों की भी हुई है, तो इसमें कोई ये नहीं. तो ब्रह्मा जी की भी निंदा होती है. तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल. हमको पर्सनल लेवल पे मैच्योर होना चाहिए. वी शुड इग्नोर द नेगेटिव थिंग्स. ओके, अदोष दुरशी. इसलिए आध्यात्मिक, इसलिए भगवान भी टेस्ट करते हैं हमको. भगवान भी टेस्ट कर रहे हैं. हम भक्तों में दोष दिखा के हम क्या दोष देखते हैं या नहीं, ये भगवान भी देख रहे हैं ना हम पर, हम कितने शुद्ध भक्त हैं. ओके, यस, पर गुरु चैस्टाइज कर सकता है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो गुरु चैस्टाइज कर सकता है. Here we will stop. Thank you so much. Hare Krishna.